और मैं बसंत प्रोडक्ट्स इंडिया विधाता, हम लोग ब्राज़ीलियन कंपनी जेएफ के डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडिया के। जैसे कि आज हम ब्राज़ील में हैं और आज हम देख रहे हैं कि ये मशीन लगभग 6 साल पुरानी है और आप देख सकते हैं कि कितना मशीन पुरानी है और इन्होंने आज तक इस मशीन में कोई भी पुर्जा नहीं बदला है और कोई भी वेल्डिंग का काम अलग से नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं मशीन कितनी पुरानी है। Since how many years you are using this machine? Quanto tempo que o senhor está usando essa máquina? Faz 6 anos. 6 years. They're using the machine since 6 years. And can you describe about your company? Like GF is a Brazilian American company. So how you how your customers find the company, what's the Okay. My name is Rafael Prado. I work at the export department at JF. JF is the leading forage equipment company in Brazil. We export to over 50 countries, and we have clients that are very well satisfied. Our focus is forage equipment, from forage choppers, stationary choppers, or chaff cutters, like in some places they call, hammer mills, fodder processors, forage harvesters, and this focus makes us to be always one step ahead of the competition. Okay, we are visiting here today a farmer in Brazil that uses our JF50 Maximum forage chopper, which is already available in India with the people from Basant Products. Basically, our machines are designed and built for long-lasting, good chop quality. They can be used for feeding cattle and also for chicken and several types of animals, okay, depending on the type of equipment that we have. Thank you, Rafael, for introducing the company GF for the farmers and my customers and dealers in India. So जैसे आप लोग देख रहे हैं, हम लोग ब्राज़ील में है जो कि साउथ अमेरिका में है और हम एक फार्म में है। जैसे आप जानते हैं कि ब्राज़ील की इकोनॉमी हमारे इंडिया से लगभग 20 या 25 साल आगे है। हम लोग अभी भी 20 साल उनसे पीछे हैं। तो हम इतनी दूर इंडिया से इसीलिए आए हैं कि समझने को कि क्यों हमारी इकोनॉमी इनसे कम है, क्या कौन सी मशीन ये इस्तेमाल करते हैं ताकि इनका टाइम सेव होता है, चॉप क्वालिटी बहुत बढ़िया आती है और जानवर की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव रहती है। तो अब हम ये फार्मर है यहाँ के लोकल, तो इनसे हम कुछ आंसर पूछेंगे कि कितने सालों से वो मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि ये 6 साल से मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो और कुछ पूछते हैं इनसे हम। इनका काफ़ी समय सेव होता है और हाउ डिड दे फाइंड द चॉप क्वालिटी, व्हाट्स द चॉप क्वालिटी? O que o senhor acha da qualidade do picado? Ele é bom, uniforme, o gado come tudo? Sim, é uniforme. Aí depende, se não, né, tem vez que a gente atrasa e faz de tempo de amolar a faca, então não dá um corte maior. A corte dele é sempre água. Okay. He said that the chopping uniformity is very good. He uses to sharpen the blades with the recommended time for the factory, and the cattle generally eats everything, so there is no waste. Everything that's chopped, it's eaten by the cattle. Mesmo essa folha seca ali, ela não vai ficar seca, se você não perder, fica melhor. So according to him, जैसा आपने देखा कि ये फार्मर मशीन से बहुत सेटिस्फाइड है और जो चॉपिंग क्वालिटी है उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, ताकि जो एनिमल्स हैं यहाँ के वो जो भी मटेरियल ये मशीन चॉप करती है सारा इजीली खा लेती है।
कोई उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती है, एंड दे आर वेरी हेल्दी। हम आगे चलते हैं, जैसा कि व्हाट इज लाइक लेबर सेविंग, लाइक इट्स अ हाई स्पीड मशीन। जैसे कि आप देखते हैं ये हाई स्पीड मशीन है, तो अब इनसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द लेबर सेविंग, लाइक कितने लोग काम करते हैं और कितना दे सेव इन लेबर कॉस्ट, तो हाउ मच दे फाइंड द लेबर सेविंग इन दिस मशीन लाइक। Só o senhor que alimenta mesmo. É só uma pessoa, Só precisa eu. só de uma pessoa, Só uma não precisa pessoa. de mais. Só eu. Então, Não. por causa dela ter a velocidade dela Isso. até alta, só o senhor que. Dá, que você corta, faz um monte, né? Depois do monte você vai, né? Primeiro você corta e montua ele. Depois você vai. Aí se fosse no caso, ir cortando, precisava mais gente, mas Sim. assim, sozinho só um monte, não tem que fazer. As it's a high-speed machine. For his needs, only he takes care of everything. So he cuts the sugarcane, and he lives in bundles, and him himself only he feed the machine Feed the machine. very quickly. जैसे कि आपने देखा कि हमारे हिंदुस्तान में और यहाँ लोगों की सोच में बहुत फ़र्क है। जैसे हम कहते हैं कि आज हिंदुस्तान में लेबर की बहुत कमी है, लेबर बहुत पैसा मांगती है और लेबर की अवेलेबिलिटी नहीं है। जैसे कि आपने देखा ये यहाँ फार्म के मालिक हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे कि ये फार्म लगभग एक 30 से 40 एकड़ का एक खेत है और यहाँ लाइक काफ़ी कैटल्स हैं और इनका मक्के की खेती है और ख़ुद भी ये काफ़ी काम करते हैं। तो ये डेली अपनी 15-20 कैटल्स के लिए खुद जितना चारा होता है खुद अपने हाथ से सुबह उठ के काटते हैं और उसको खुद ही इस मशीन के अंदर डालते हैं, ताकि इनका शौक भी है और लेबर इनको बहुत कम लगती है, लाइक खुद ही काम कर लेते हैं। मे बी इस सारे काम के लिए इनको 1 घंटा चाहिए, पूरा 1 घंटे में सारा काम इनका हो जाता है लाइक। और कोई इन्होंने एक्स्ट्रा लेबर नहीं रखी हुई है, सारा काम फीडिंग से लेके काटने तक खुद ही सारा काम कर लेते हैं ये। ओके, थैंक यू। अब हमने मशीन के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया। अब हम लोग इनसे मशीन की मेंटेनेंस के बारे में जानकारी लेंगे कि मशीन की मेंटेनेंस का क्या प्रोसेस है, लाइक व्हाट इज द मेंटेनेंस प्रोसेस, व्हाट ही रिकमेंड। Parte de manutenção, de o senhor dar nela. E hora, não nunca vai dar quebrou. 15 horas no mês. Nunca Não, quebrou. não. A única coisa que eu troquei foi só essa parte. Por causa da cana, né? Por causa da Se cana. for o capim, ela dura mais. Okay. Basically, what he does is sharpening the blades, greasing, okay, and from time to time he cleans the machine. Okay. He cleans the machine for longer lasting of the metal parts. That's pretty That's much only the in maintenance. 6 years he had never had a breakdown on the machine. जैसा कि आपने देखा कि हमने इनसे पूछा कि आपका मेंटेनेंस प्रोसेस क्या है। जैसा कि ये इस मशीन को 6 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं और मेंटेनेंस के नाम पे सिर्फ कभी कभी मे बी 15 या 20 दिन के अंदर ये ब्लेड को धार लगाते हैं। 15 या 20 दिन बाद ये लोग मशीन की जितने बेयरिंग्स हैं, बेयरिंग्स में ग्रीस डालते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मशीन को साफ़ कर लेते हैं। इसके अलावा 6 साल के अंदर इस मशीन में इन्होंने कोई भी पुर्जा नहीं डाला है। आप देख सकते हैं जैसे हम हिंदुस्तान में बाकी मशीन डालते हैं तो आधा टाइम हमारा टेंशन में निकल जाता है भाई कि हमारा मशीन का मेंटेनेंस कैसे होगा, बाहर से मैकेनिक आएगा या धार लगानी पड़ेगी या फिर उसमें पुर्जे बदलने पड़ेंगे या वेल्डिंग करनी पड़ेगी। तो जैसे कि आप आज ये लोग जो बहुत सेटिस्फाइड है इस मशीन से, ये कुछ समय निकालते हैं फीडिंग के अंदर, बाकी ये लोग रिलैक्स करते हैं। जैसा हम देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर लोग बहुत रिलैक्स रहते हैं, काम बहुत कम रहता है। वो इसलिए क्योंकि वो अच्छी मशीन लेते हैं, वो मशीन को सौदों में तोलते नहीं हैं ताकि उनकी टाइम सेव हो सके, लाइक वो टीवी देख सकें, लाइक कि वो पिकनिक पे जा सकें, अपने बीवी बच्चों को टाइम दे सकें। तो ये सब बातें ध्यान में रखकर लाइक दिस इज़ द लेटेस्ट मशीन। अब is his satisfaction level for this machine? Like, No geral, o senhor está satisfeito com a máquina? Sim. É. É muito bom. É pra você ver, dá o corte, não tem manutenção. Não tem manutenção. He said he's very satisfied because it's a high-speed machine. It helps him to have very enough feed fast and pretty much very little maintenance.
very little muscle. जैसे कि आपने देखा कि सेटिस्फेक्शन लेवल इसका इनका हाईएस्ट है फॉर द मशीन, क्योंकि ये हाई स्पीड मशीन है और ना के बराबर मेंटेनेंस है, तो दे आर प्रीटी मच सेटिस्फाइड, वो 100% सेटिस्फाइड है मशीन से। Said he has much more time. much more time for his doing family, other, for watching for the TV, doing other stuff. Yeah. It's either for leisure or if it's yeah, for work. yeah. But it saves him a lot of time. Saves him a lot of time. And time is very important Time is very nowadays. important, yeah. अब हमने काफ़ी जानकारी ले ली। अब हम ये मशीन के बारे में, ये मशीन में क्या क्या चीज़ क्रश करते हैं और काटते हैं। What they crush, like they crush soybean or maybe the maize or maybe the sugar cane, or they cut what? O que o senhor usa a máquina basicamente para quê? Para picar o quê? Para picar cana. Cana. Já piquei capim também, né? Já picou capim também? Na pia. Colonial, na Na pia. pia. Ok. Só que eu não sou bacana. Entendi. E além disso, o gado fica pastando. Sim. Aí o senhor dá algum outro concentrado? Tem o sal mineral, Sal mineral, né? proteinado e um, né, para acabamento, né? Sim. Um pouco de milho junto. Põe isso no coxo, Põe em cima milho. da comida. Aquele quebrado. Isso. Okay. He feeds. He used the machine for sugarcane and Napier grass. Okay. 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 And then he feeds these to the cattle. The cattle also grazes when there is enough grass, especially during summer. Okay. And he gives some protein salt and some ground maize. Okay. Ground maize grains, corn grains. जैसे कि आपने देखा, ये इस मशीन से शुगर केन काटते हैं, मक्के की पूरी स्टेम काटते हैं, और बाकी खेत में जितना भी मटेरियल होता है सभी तरीके का इस मशीन में काटा जा सकता है। और बाकी जैसे इन्होंने बताया कि जो टोटल कैटल फीड है, तो कैटल फीड के लिए लोग शुगर केन हो गया, मक्का हो गया, मक्के के दाने का बुरादा हो गया, सबको अच्छी तरह मिक्स करके ही खिलाते हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान में जनरली लोग मिक्स नहीं करते, क्योंकि इनका कहना रहता है कि जैसे जो शुगर केन हो गया या फिर जो स्वीटर पार्ट होता है, अगर हम वो भूसे के अंदर ऊपर से डालते हैं तो जानवर पहले उसको खा जाता है। जैसे बच्चे के सामने मिठाई रख दो खाने के संग, तो पहले बच्चा मिठाई खाएगा। जानवर बच्चे की तरह है, अगर उसको आप मिक्स करके नहीं खिलाओगे तो वो अच्छी तरह नहीं खाएगा वो। तो हम इन लोगों को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हमें इतना टाइम दिया, और हो सकता है कि भाई हम थोड़ा सा इनसे सीखें। थैंक यू। Okay. थैंक यू। Thank you.